ناولٹ کہانی مجھے لکھتی ہے، اس کے کچھ اقتباسات۔ سب سے پہلے سورہ یوسف کی ایک آیت کا اردو ترجمہ۔ ہم تم سے ایک بڑا عمدہ قصہ بیان کرتے ہیں، اور اس ہمارے بیان کرنے سے قبل تم اس سے محض بے خبر تھے۔ اب ناولٹ شروع کرتا ہوں۔ کسی ملک میں کہانی ایک مصنف کے ساتھ مٹی کی دیواروں اوپر کھپریل کے عالیشان محل میں رہا کرتی تھی۔ اس محل میں داخل ہونے والے کسی بھی آدمی یا جانور یا کیڑے کے لیے ایک پرشکوہ دروازہ تھا، 6 فٹ لمبا، 3 فٹ چوڑا، بانس کے ٹکڑوں پر ٹین کے ٹکڑے رکھ کر 6 پیسے والی کیلوں سے انہیں جڑ دیا گیا تھا۔ ٹین پر زنگ کے دھبوں کو چھپانے کے لیے گاڑھے چونے کی پتائی کی گئی تھی۔ دروازے کا پٹ اکہرا تھا، اس میں احتیاط کے رواج والی کنڈی نہیں تھی۔ اس کا سبب دروازے سے لگا ہوا 15 فٹ لمبا 15 فٹ چوڑا آنگن تھا۔ آنگن میں کوئی مانوس رومانس نہیں تھا، صرف ایک ببول کا پیڑ تھا۔ البتہ اس کے پاس بیٹھا ہوا اعلیٰ دیسی نسل کا براؤن کتا، مگر اس کی گردن میں کوئی پالتو علامت نہیں تھی، بلکہ اس کی جگہ کھال میں پیوست کتا مکھیاں خون پی کر پھولی ہوئیں موتیوں کی مماثل مگر آبدار سفیدی کے بجائے گہرے وائلٹ رنگ کے موتی یا دھوپ کھائے ہوئے لہو سرخ۔ شروع میں ان کی رنگت پازیٹو بلغم کی رہی ہوگی۔ ممکن ہو ایسے موتی سمندر میں نہ ہوں، ایسے موتی محض کتے کی گردن کے گرد کھال میں دھسی ہوئی نصف نمایاں کتا مکھیاں بناتی ہوں۔ ایک عجیب بات یہ تھی کہ کتا ٹماٹر کھاتا تھا، اسے ہڈی گوشت سے بالکل رغبت نہیں تھی۔ رات کے بارے میں اس کے خیالات غالباً دنیا کے تمام کتوں سے مختلف ہوں گے، اسی لیے وہ رات میں ذرا بھی نہ جاگتا، بلکہ محل کے اس خاص ایوان میں جا کر سو رہتا جس میں کہانی مصنف کے ساتھ جاگتی تھی۔ جاگنے کے لیے دماغ کو کریدنے والا ایک قلم تھا، جسے کہانی مصنف کی انگلیوں میں اس طرح رکھتی کہ غالباً قلم نہ ہو، چاقو ہو، جسے قتل کرتے ہوئے ایک خاص تکنیک سے تھاما جاتا ہے۔ ایوان 8 فٹ چوڑا 10 فٹ لمبا تھا۔ اس مناسبت سے کونے میں بچھے ہوئے 2.5 فٹ چوڑے اور 3.5 فٹ لمبے تخت پر کہانی مصنف کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی اور کبھی سو بھی رہتی تھی، مگر آنکھیں کھلی رکھتی تھی۔ جب وہ خود کو مصنف سے لکھوانے کے لیے بغیر لائن والے کورے سفید کاغذ کے کچھ شیٹ تپائی پر رکھ دیتی تو تپائی سے لگی پلستر اکھڑی دیوار کی کھوٹی سے لٹکی 1914 کے سمے کی لالٹین کی نیم سیاہ اور سرخ شعلہ ملی ہوئی دوسرے معنی میں گہری گاڑھی لتھڑی غمگین روشنی کاغذ کی سفیدی پر ڈالتی۔ ایسے میں بچپن میں مدرس کی نصابی آنکھوں سے پڑھائے گئے جغرافیے کی یاد تازہ ہو جاتی۔ قطب شمالی میں 6 مہینے کی مستقل رات کے بعد جب سویرا نمودار ہوتا ہے تو برف کی سطح سے تاریکی ہٹنے اور روشن سفیدی کے جھلکنے تک عجیب منظر ہوتا ہوگا۔ کہانی اور مصنف نے قطب شمالی نہیں دیکھا، رہا اس کے عجیب منظر کا ذکر تو اگر یہ لکھ دینے سے مماثلت کا وشواس ہوتا ہے تو ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ 8 فٹ چوڑے اور 10 فٹ لمبے ایوان کے رات زدہ اندھیرے میں تپائی پر رکھے ہوئے کاغذ کی شیٹ قطب شمالی کی برف کی سطح ہے، اور 1914 کے سمے کی لالٹین سے خارج ہوتی نیم سیاہ شعلہ سرخ روشنی قطب شمالی کا سویرا تو یہ ناکافی تھا۔ دنیا میں لکھی گئی انگنت کہانیوں میں ایسی مشکوک مماثلتوں کا ایک ہجوم چلا آتا ہے۔
तिपाई पर रखे कागज की अव्वल शीट पर मुसन्निफ 3 पैराग्राफ ही तो लिख पाया था कि कहानी ने उसके कलम को रोक दिया। तमाम सतरें काट दो और फिर लिखो। ये तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें फिर लिखूं? मुसन्निफ ने बगैर कुछ मुंह से बोले कहानी से कहा और कहानी ने सुना। फिर कहानी ने मुसन्निफ से कहा, मुझे अब इस तरह लिखो कि मैं नामुमकिन बन जाऊं। नामुमकिन? मुसन्निफ ने तेल घटती लालटेन की भभक और ऐवान के कोने में सोए हुए कुत्ते के पास रखी हुई तेल से खाली बोतल को तशवीश से देखा। सो तुम भी देख लो कि लालटेन अब बुझा चाहती है। तुम्हारा मतलब तेल की मौजूदगी से है ना? मुसन्निफ की दाएं आंख की पुतली में बैठी हुई कहानी के लहजे में उसकी मखसूस बेफिक्री हैरत अंगेज थी। तो ऐसा करो कि कहीं से जाकर तेल ले आओ। मुसन्निफ परेशानी से बोला, इतनी रात गए तेल कहां से मिल सकता है? मुल्क पर रात की चढ़ाई है। शहरों और कस्बों में तेल की दुकानें और गोदाम बंद हो गए। फिर कहानी सोच में पड़ गई। जरा सा वक्फा देकर उसने मुसन्निफ की बाएं आंख की पुतली का रुख किया और उसे याद दिलाया, तुमने एक बार मुझे बताया था कि तुम मुल्क के उस गांव में गए थे जहां तुम्हारी मां पैदा हुई थी, फिर 33 साल की उम्र में मर गई। उसे उसके आबाई मकान से 2 फरलांग पर बरगद के पेड़, मदार की झाड़ियों और बरसाती गड्ढे के पास वाले आबाई कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया था। तुमने ये भी बताया था कि जिस मकान में तुम्हारी मां पैदा हुई थी उसमें उस वक्त लालटेन जलती थी और जिस वक्त वो मरी तब भी लालटेन जल रही थी। मुसन्निफ चौंका। तुम्हारा मतलब यह है कि मैं 36 घंटे के रेल के सफर वाले रास्ते पर किसी तरह चला जाऊं और अपनी मां के गांव वाले घर से, अगर वहां लालटेन जल रही हो और तेल मौजूद हो, थोड़ा सा तेल मौजूद हो, थोड़ा सा तेल ले आऊं? अव्वल ये कि ये निरी फैंटेसी है। दोयम ये कि अगर ये किसी मौजे से मुमकिन हो भी तो ये मुमकिन नहीं कि मैं वापसी में थोड़े से तेल के साथ 14 साल पुराने गाढ़े गम का भारी बोझ भी उठा के ले आऊं। गाढ़े गम के भारी बोझ से क्या मुराद? कहानी ने पूछा। तब वो मुसन्निफ के कल्ब के मरकजी हिस्से से बाहर निकल रही थी। मुसन्निफ ने उसे अपने गले के कौए की तरफ रुख करते हुए देखा और इनकार में सर हिला दिया। नहीं, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। सर्दी घा के अकड़े हुए लफ्जों की कवायद में नहीं जानता। मैंने किसी स्कूल में पहले से बना बनाया तालीम का चेहरा नहीं देखा। मेरा इस्म इसमें आखिर का आगाज है और मेरे अल्लाह की यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी है। मैं सिर्फ ये बयान कर सकता हूं कि मेरी मां के गांव से तरक्याती प्रोजेक्ट के जेर इंतजाम इलेक्ट्रिक खंभों का एक सिलसिला चला गया है, बिल्कुल मेरी मां की कब्र, बरगद, मदार की झाड़ियों और गढ़ी वाले रास्ते से। मगर गांव के घरों के मुकद्दर और बिजली के बल्ब के दरमियान मुफाहमत नहीं हुई। मेरी मां की कब्र धंस गई है। उस पे कोई कतबा नहीं है। उसके घर का 3/4 हिस्सा हर साल की बारिश की मार से ढेर हो चुका है और जो बचा है उस पे अंधेरा है। अंधेरा 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्से में चमारिनों के थापे हुए ओपलों के निशान हैं। दूसरे हिस्से में मुर्दाकाई का रंग है। तीसरा हिस्सा जिंदगी से जबरदस्ती चिमटी हुई अंधेरे की माया है, मगर इसका जिक्र ज्ञानियों के ज्ञान में नहीं मिलता। बस ये एक आड़ है। इस आड़ में इंसानी चमड़े की बेहिसी पर इंसानी चमड़े की बेहिस रगड़ उम्र को घिसती है। एक फहरिस्त जिस पर हुरूफ घिसे हुए हों और उन्हें मौत के सिवा पढ़ने वाला कोई ना हो। हालांकि बात इतनी सी है। कहानी ने मुसन्निफ के बयान की अपनी दानिस्त में वजाहत की। बात इतनी सी है कि तुम्हारी मां की मौत के बाद उसका गांव सरकार के तरक्याती कामों में रुकावट बनेगा और गांव वाले कभी इस काबिल नहीं हो सकेंगे कि बिजली का कनेक्शन लें।
सरकार के पास एक चीज होती है बुलडोजर, जिसे लोग सरकार की अक्ल समझते हैं या सरकार उन्हें जैसा बावर कराती है। दुनिया की हर सरकार दरअसल इफादियत पसंद होती है। बुलडोजर बनाने वाले भी इफादियत पसंद थे। उसकी दानिश में इंसानी हसरतों से ज्यादा नाकारा कोई चीज नहीं थी, सो उसने मिटाने की ये तरकीब की कि उनकी हसरतों पर सुर्ख निशान लगा दी। बुलडोजर बनाने वाले ने कभी मौत के हाथों बंद होती पलकों से लुढ़क कर फर्श पर गिरते हुए उस आखिरी आंसू को नहीं देखा होगा जो अधूरी तमन्नाओं के मंजर से बिछड़ती हुई गम की जमालियात को नजर आता है। इसके साथ ही नाकिद आंख की बेरहमी उसे जज्बातियत करार देती है। वो कहती है, मुंह फेर के आगे बढ़ जाओ, मुड़ के मत देखो कि गहरी उदासी के साथ गिरी हुई दीवारों के दरमियान एक ताक बच गई है। उसमें एक हथेली और उस पर रखे हुए मड़वे के हलवे की परछाई रखी हुई है। हथेली पुकारती है, मेरे लाल हलवा ले जाओ, मुड़ के मत देखो। तो वो बस एक परछाई है। आंसुओं की धुंध में ऐसी परछाइयां बहुत दिखाई देती हैं। इसके बावजूद कदम रुक जाते हैं। सामान वाली कोठरी, जो अब सामान के बगैर कूड़े और मिट्टी का मिला जुला मलबा है, उसमें से छोटी बहन का नन्हा हाथ उभरता है। हाथ में कांपता हुआ उसका जांकने के वक्त का चेहरा, जब उसने पुकारा होगा। नहीं, ये तो तुम्हारे वहम में उसने पुकारा होगा। उसको मरे हुए तो कई बरस गुजर चुके। उस वक्त तुम यहां मौजूद भी नहीं थे। तुम तो अपनी कौम के बनाए हुए मुल्क में थे। कई साल बाद जब तुम यहां पहुंचे तो महज बदली हुई जगह देखकर तुम्हारा यह हाल हुआ। तुमने मलबे को कुरेदा तो क्या मिला? नन्ही कलाइयों में पहनी जाने वाली चूड़ियों के कुछ टुकड़े। ये टुकड़े अब किस काम के हैं? उन्हें जेब में रख के कितनी देर रहोगे? छोड़ो, आगे बढ़ो। जरा ऊपर देखो, बिजली के खंभों में सरकार ने बल्ब रोशन कर दिए हैं। यहां नई आबादी बनेगी, नए सिरे से लोग आबाद होंगे। तरक्की की ये पहली सीढ़ी है, बाकी सीढ़ियां भी बुलडोजर से बनेंगी। इसके अलावा भी तो कई वाकयात हुए होंगे, क्यों नहीं? वाकयात तो हुए, जरूर हुए, मगर उनके होने पर तुम्हारे इलाके के रहन सहन की रिवाजी यकसानियत ज्यादा हावी थी। ये यकसानियत कभी कभार टूट भी जाती थी, किसी गैर मामूली वक़ुए से हरगिज नहीं, बल्कि महज एक तन आसान तब्दीली के धोखे में दोहराए हुए वाकयों की गर्मबादारी से। पैरवी का फुजला, जमीन और जायदाद के लिए किए गए कत्ल, सास के रिवायती जुल्म से तंग हुई रेलगाड़ी से कटकर खुदकुशी करने वाली बहू की मजलूमियत, किसी मियाँ जी की मुंहजोर शहवत की शिकार किसी आसामी औरत की फुर्ज शिकनी और चोरी चिकारी के नतीजे में होने वाला वावेला वगैरह, मगर बस कान गर्म करने वाली सनसनी की हद तक। फिर वही बैलगाड़ी की रफ्तार से चलते रहन सहन से सड़ती हुई काई, मवेशियों के मूत और गोबर की मिली जुली बास आती रहती थी। ये ज्यादती है, मुसन्निफ ने कहानी से एहतजाज किया। तुम मेरे इलाके के रहन सहन की तजलील कर रही हो। मुझे अच्छी तरह याद है कि मौसम बदलता तो उसके साथ ही लोग कुछ न कुछ करने के लिए ताज़ादम हो जाते, रसूम, त्योहारों और जलसे जुलूसों में दिलचस्पी लेते। मैं इससे कब इनकार करती हूं? जो कुछ तुम अपने इलाके के बारे में बता रहे हो, मैं तुम्हें इससे ज्यादा बता सकती हूं, मगर मेरी दानिश में वो सब कुछ बताना गैर जरूरी है। गैर जरूरी है जो मंजर निगारी के मरीज मुसन्निफीन के जुमरे में आता है। मैं तुम्हें इससे अलग देखना चाहती हूं, वरना ऐसे वाकयात तो कई हैं जो तुमसे ज्यादा अवामुन्नास की दिलचस्पी के हैं, जिनकी मंजर निगारी से एक समा बांधा जा सकता है कि किस तरह तुम अपने इलाके में फैली हुई हमजिनसी के शिकार हुए थे
और आसमान छुप गया था। एक ऐसी आड़ जो आम के पेड़ों, खासकर कच्चे आम से खारिज होती हुई चोप, या कोई ऐसा कच्चा आम जिसके बारे में कहा जाता था कि अगर उस पर कोयल बैठ जाए तो वो काले धब्बे वाला यानी कोयलासी हो जाता था। इसके अलावा भुसौला, पुआल, अरहर के खेत, बांस और सरकंडों से मिलजुल कर दिन में भी तारीकी का कारण बन गई थी। और वो लोग कौन थे जो रामलीला के आखिरी दिन शाम ढले राम, लक्ष्मण और सीता का स्वांग भरने वाले लड़कों की खुशशक्ली पर बोली लगा रहे थे? फिर जामा मस्जिद के सामने क्या हुआ था? यही ना कि मस्जिद के सहन के सामने से गुजरते गंदाब के नाले में एक जानी पहचानी पागल औरत बिल्कुल बरहना उकड़ू बैठी थी। गंदाब के कीचड़ से निस्फ सनी हुई स्याह पिंडलियां और उनके ऊपर तक सिर्फ स्याही थी, इतनी स्याही कि उसमें चिकट स्याह बालों के गुच्छों और एक गोश्त रंग गुभार को देखना भी महाल था। उसके साथ क्या सुलूक हुआ? जब मस्जिद से नमाज पढ़कर बाहर निकलने वाले लोग महज रियाकार तमाशाई बन गए थे, फिर पेशिमाम के कहने पर एक नौजवान मर्द तमाशाई ने एक बड़ी सी बांस की लग्गी से पागल औरत की बरहनगी को खोदना शुरू किया, इस तरह कि देखने वाले उसे एक अखलाकी फर्ज समझें कि मस्जिद के सामने से एक पागल बरहना औरत को हटाने की कोशिश की जा रही है। ये और बात है कि उस पागल औरत की लग्गी वाले जवान मर्द तमाशाई से पुरानी पहचान थी, मगर ये पहचान इसलिए खप्त हो गई थी कि मजहब को आड़ में रखकर उससे महज अपनी मर्जी की तरदीद कराई जाती। जब पेशिमाम शहादत की उंगली उठाकर खला में तौसीक का एक मुबहम निशान बनाता और लग्गी वाले तमाशाई की पुष्ट पनाही करता। मगर तुम उस वक्त अपने मजहब के सिवा किसी और मजहब को फैसले की अलामत के तौर पर नहीं जानते थे। हालांकि तुमने तो उस अमेरिकन मिशनरी को भी देखा था जो तुम्हारे इलाके में मिशन कंपाउंड कायम करने में कामयाब हो गया था। उसने अपने मैले दांत, मोटरसाइकिल और खुश्क दूध के थैले के पस मंजर में चमार औरतों को देसी ननों में तब्दील किया और उनके तवस्सुत से इलाके की जरूरतमंद औरतों और मर्दों को पहली बार लूप का तरीका इस्तेमाल बताया। तुम ये समझोगे कि मैं ये सब कुछ बताकर मजहब की तजलील कर रही हूँ? नहीं, हरगिज नहीं। आखिर वो कौन फित्तीन था जिसने एक आलिम दीन के जलसे में चुपके से घुसकर वीआई लेनिन की एक तसनीफ के उर्दू तर्जुमे की कई जिल्दें तकसीम की? एक जिल्द तुम्हें भी मिली थी, मजबूत और खुशनुमा जिल्द, जिसे पढ़कर तुम इतने मुतासिर हुए कि तुम्हें हर मजहबी सरमायादारी का अलकार मालूम होने लगा। तुम भी छोटे काश्तकारों को जमींदार समझकर उनका खलियान लूटने वालों में शामिल हो गए। इसके आगे जो रास्ता जाता था उस पर चलकर शायद तुम एक छोटे से इनकलाबी हो जाते, मगर इसको क्या कहा जाए कि पवित्र नगर से बनियों की बारात आई थी, और जब बारात आई तो साथ में एक नर्तकी भी आ गई। शामियाना लगा था और बारातियों के दरमियान नर्तकी बैठी कोई ठुमरी सुना रही थी। तुम बाहर के तमाशाई की तरह एक तरफ खड़े नर्तकी को देख रहे थे। उसके रंग रूप, बदन और खासकर सफेद साड़ी बांधने के अंदाज में वो सब कुछ था जो होना चाहिए था, बल्कि तुमने तो उसे तसव्वुरी अप्सरा का बदल समझ लिया था। तब एक पुलिस कांस्टेबल ने रकम लुटाते बाराती बनियों से बेपरवाह नर्तकी को डांट के हुक्म दिया था कि वो खड़ी होकर गाए और नाचे भी। खिलाफे उम्मीद तुमने देखा कि नर्तकी बड़े खादिमाना अंदाज में उठ खड़ी हुई और नाच नाच के गाने लगी। जब वो खूब नाच के गा चुकी तो कांस्टेबल ने बड़ी हकारत से गिल्लट का मैला सा एक रुपये वाला सिक्का उसके सामने फेंका, जिसे नर्तकी ने बड़ी खुशी से उठा लिया, जबकि बाराती बनियों के दिए हुए 10-10 और 100-100 के नोट पड़े रह गए थे। तुमको अपने तसव्वुर की बेवकती और एक मामूली अख्तियार की कुव्वत का शदीद एहसास हुआ। तुम वहां से पलटे और आगे बढ़ गए। उस वक्त किसी ने भी तुम्हारे चेहरे के तअस्सुर को नहीं देखा था, न नर्तकी ने, न कांस्टेबल ने और न किसी बनिए बाराती ने। फिर भी इन वाकयात में तुम्हारी फर्दियत की पहचान इतनी नुमायां नहीं थी जितनी सिर्फ उस एक वाक़े में थी जब तुम एक शुमाली रियासत के घने जंगल में गुम हो गए थे। हरचंद के तुम राज परिवार में पले बढ़े राजकुमार नहीं थे, फिर भी तुमने घने जंगल में गुम होने से पहले मुंतखब मधुमक्खियों के जरिए हासिल किए गए मुंतखब फूलों के रस के छत्ते से मुंतखब शहद चखा था। वो शहद जो रियासत के राज परिवार के लिए मखसूस था और उसे हासिल करने का ठेका तुम्हारे नाना को दिया गया था।
حیرت ہے کہ تمہیں سب کچھ ویسے ہی یاد ہے جیسے میں نے دیکھا تھا۔ مصنف کہانی کو یاداشت کی صلاحیت کی داد دینے پہ مجبور ہو گیا۔ کہانی کے رویے میں بھی مصنف کی چاہت جھلکنے لگی۔ مجھے تو تمہاری پہچان کے ایسے مرحلے بھی یاد ہیں جو تمہیں اپنی خواب انگیز دھند کی بنا پر بالکل یاد نہیں ہوں گے۔ مثلاً ایک اندھیرا تھا تمہاری اوائل عمری سے لے کے نوجوانی تک کی تفصیلات کا، اور ان تفصیلات کے لگ بھگ 3 7 9 12 اور 19 25 کے درمیان کے گیپ کا۔ تو 3 7 کی عمر کے درمیان ایک مکان کے بھیتر کا حصہ ابھرتا جس میں 2 عورتیں ایک ہی پلنگ پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ ایک عورت عام بچوں کے نارم سے ہٹے ہوئے غیر معمولی طبیعت کے بچے کی ماں تھی۔ دوسری عورت غالباً اس کی چھوٹی بہن تھی جس کی بچی مکان کے آنگن میں کھیل رہی تھی۔ اس کے بالوں میں سرخ ریبن بندھا ہوا تھا۔ پلنگ پر بیٹھی ایک عورت یعنی چھوٹی بہن دوسری عورت یعنی بڑی بہن کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ باہر دن کی دھوپ پھیلی ہوئی تھی اور اس کی دمک سے مکان کے اندر کا حصہ روشن تھا، ایک طرح سے ٹھنڈا تابا۔ دونوں عورتیں ذرا سی دیر کے بعد کسی بات پر ہنستیں اور تب بڑی بہن کے سر کے بالوں کا گچھا ہوا سے اڑ کر اندر ہی اندر چکرانے لگا۔ غیر معمولی طبیعت کا بچہ اسے پکڑنے کے لیے باہر بار بار لپکتا۔ اس اثنا میں چھوٹی بہن کی بچی آنگن سے دوڑ کر اندر کے حصے میں آئی اور بچے کو اپنے بالوں میں بندھا ہوا ریبن دکھانے لگی۔ دونوں عورتوں کے چہروں پر ایک سمجھ میں نہ آنے والے ارمان کی خوشی جھلک رہی تھی، مگر یاد نہیں آتا وہ مکان کس گاؤں یا قصبے یا شہر کا تھا۔ البتہ وہ تم ہی تھے، یعنی وہ بچہ، پھر 9 12 کی عمر کے درمیان، شاید 10 برس کی عمر میں، ریلوے لائن کے ساتھ ٹیلی گراف کے کھمبوں سے کان لگا کے تم کس کی آواز سنتے تھے، اور تال کے پانی کی سطح پر ٹھیکرے سے چھچلی کھیلتے ہوئے تمہارا دل کیوں اچھال کھاتا تھا، مدرسے سے واپس آتے ہوئے روتاروں کے گاؤں میں معصوم لگاوٹ کو اکسانے والی شام کیوں ہوتی تھی۔ اتنا یاد ہے کہ تازیے والے چوک سے آگے جس ادپکے مکان کے سامنے کی دیوار پر گاڑھی چنا کلی ہوئی تھی، اس پر گیروے سے راجا جی کے ہاتھی کی لوک چترکلا کا ابھیمان جھلکتا تھا، اور چبوترے پر میلے کپڑوں میں دبلی پتلی مگر کمان کی طرح کھچی سانولی لڑکی تمہارے راستے سے گزرنے کے سمے کو دھیان میں رکھ کر کھڑی رہتی۔ جو ہی تم گزرتے وہ تمہیں بڑی چنچلتا سے سپہیا پکارتی۔ پتہ نہیں تم سپہیا کا مطلب سمجھتے بھی تھے یا نہیں، یا وہ لڑکی جو خود 7 8 برس کی ہوگی وہ اپنے سے 2 3 برس بڑے لڑکے کو سپہیا دانستہ پکارتی تھی یا غیر دانستہ۔ بہرحال سپہیا تم ہی تھے۔ ویسے اگر تم اس وقت کسی پکارے جانے والے لفظ کا شجرا معلوم کرنے کے قابل ہوتے تو تمہیں کوئی بھی بزرگ بتا سکتا تھا کہ ملک کے جس کسی علاقے میں مختلف وقتوں میں لوگ ندیوں کے کنارے آ کے پڑاؤ ڈالتے تھے وہ دراصل صوبیداروں کی فوجوں کے سپاہی ہوتے۔ انہیں جہاں کہیں موقع ملا انہوں نے اپنے پڑاؤ کو آبادیوں کی صورت دے دی۔ اگرچہ اس کے بعد بھی تم واقعے کی تفصیل میں خود کو سب کچھ پاتے ہوئے بھی اوجھل پاؤ گے، تمہیں یاد آئے یا نہ آئے، مگر وہ تم ہی تھے۔ تم جغرافیہ کی کتاب میں یہ پڑھ کر کہ سورج سب سے پہلے جاپان سے نکلتا ہے، تڑکے منہ اپنی گراری نچاتے ہوئے اپنے گاؤں کی ندی کنارے پورب کی اور چل پڑے تاکہ پیدل بھاگ کر ٹھیک اس ستھان تک پہنچ سکو جہاں سے سورج طلوع ہو رہا تھا، یعنی خیالی جاپان سے۔ وہاں تم نہیں پہنچ سکے، بلکہ طلوع ہوتے ہوئے سورج کو ندی کی سطح پہ دیکھ کر تم نے یہ سمجھا تھا کہ ندی کی تہ میں جاپان ہے، سو تم سورج کو دیکھنے کے لیے ندی میں کود پڑے۔ اگر مچھیرے تمہیں نہ بچاتے تو تم کب کے مر چکے ہوتے۔ یا وہ لڑکی تمہیں یاد ہوگی جو چیچک سے مری تھی، اسے آدھی رات کو بارش سے نم قبرستان کی زمین میں دفن کیا گیا تھا۔ تم نے بارش میں بھیگتے ہوئے اس کے جنازے کی نماز پڑھی تھی۔ اس لڑکی کو بھی چیچک سے مرنا تھا، ورنہ وہ تو محض ایک بچکانہ کھیل تھا جب تم نے اپنے گھر میں شام کے کھانے میں پکائی جانے والی بھنڈی کے کٹے ہوئے سروں کو اس لڑکی کے چہرے پر جگہ جگہ چپکا دیا تھا۔ یوں تمہیں گمان ہو چلا تھا کہ زندہ چہرے کی علامت دیکھتے دیکھتے مردہ چہرے کی علامت بن جاتی ہے۔ تم سوچتے تھے اور اپنے گاؤں کے تالاب کے کگارے پر اکیلے بیٹھ کر پانی میں اندھے بھکاری کی طرح اترتی شام کو دیکھتے تھے۔ بات یہ ہے
कि तफसीलात का एक बड़ा हिस्सा तुम्हारे होश व हवास में शामिल है। तुम्हारे होश में आज़ाद गुलामों का मुल्क तकसीम हुआ। तुमने अपनी बाखबरी में जिलावतनी को कबूल किया, अपनी कौम के हिस्से में आए हुए मुल्क में आए और महाजिर कहलाए। मगर तुम्हारी सवारी के ठहरने के लिए न तो अबू अयूब अंसारी का दरवाजा था, न अंसार के घर और मालो मता। जमीन की शक्ल चारों समत तक ऐसी थी जैसे कोई अजदहा बहुत कुछ निगल चुका है और बहुत कुछ निगल रहा है। दूसरे बहुतों के साथ तुम भी अजदहे के मैदे में उतर गए। तुम मरे तो नहीं, मगर अजदहे के मैदे ने तुम्हें जीने के लिए भी कुछ नहीं दिया। उसने तुम्हारी भूख, खाली जेब, फेफड़े की बीमारी, बेघरी, औरत की तलब से महरूमी को 8 बरस तक मज़ाक खेज बनाए रखा। मगर याद नहीं आता कि 19 से 25 बरस की उम्र के दरमियान तुम्हारी कौम के लोग अजदहे के मैदे में किस तरह रह रहे थे। वो कल्ब से बोलते थे या नरखरे से, और तुम्हारी कौम की औरतों के पास मोहब्बत करने वाले आज़ाद थे या नहीं, या उनकी शर्मगाहें उनके नरखरों में थीं, मगर वो अजदहे के मैदे में किस तरह तजारत करती थीं। गलीज तारीकी में उनकी आंखें क्यों कर चमकती थीं। वो कैसी रियाकारी थी जब तुमने उन्हें इस आलम में पाया कि वो बीवी बनकर भी आसूदा नहीं कर सकती थी और फाहिशा बनकर भी आसूदा करने के काबिल नहीं थी। इसके बावजूद वो हावी नजर आती थी और तुम्हारे पास से सफाकाना गुजर जाती थी। फिर तुम करते भी क्या? तुमने 8 साल अजदहे के मैदे में मुश्तनी की, और जब एक इंतहा हो गई तो तुम्हें हातिम ताई का वो वाक़या याद आया कि एक बार उसे जंगल में एक अजदहे ने निगल लिया था। हातिम ने उसके मैदे में पहुंचते ही उसे चाकू जैसी किसी चीज से जो उसके पास थी काटना शुरू किया। अजदहे को तकलीफ के साथ शदीद कै हुई और कै के साथ हातिम उसके मुंह से बाहर निकल आया। इस वाक़े के ध्यान में आते ही तुमने भी अपने कलम को चाकू बनाया और उससे अजदहे की आंतों को काटना शुरू किया। इत्तफाक से तुमको वैसी ही कामयाबी हुई जैसी हातिम को हुई थी। कामयाबी? मुसन्निफ ने हैरत से कहा, अगर तुम इसे कामयाबी समझती हो कि कोई जानदार एक अजदहे के मैदे से निकलकर दूसरे अजदहे के मैदे में पहुंच जाए, तो फिर हर जानदार अपनी जान बचाने में कामयाब होने का ख्याल तर्क कर दे। अगर ये मान लिया जाए कि तुम एक अजदहे के मैदे से निकलकर दूसरे अजदहे के मैदे में आ गए, तब भी दूसरा अजदहा दूसरा नहीं बल्कि तुम्हारा अपना है, बहुत पहले से अपना, न सिर्फ अपना बल्कि बड़ा वसी और शांत। तभी उसने अपने वसी और शांत मैदे में रहने का जवाब पूछा और तुम्हें हरासा किया, जबकि मैंने बार बार उससे दरखास्त की कि मैं उसका अपना जानदार हूं। मगर वो दरखास्त के खादिमाना लहजे का ख्याल किए बगैर मुझसे कहता रहा कि तुम अगर मेरे अपने थे तो मेरे मैदे से बाहर निकल के कहाँ गए थे। मैं उससे कहता तुमसे छोटे अजदहे के मैदे में। जवाब में वो कहता कि जो जानदार उसके मैदे को छोड़ के दूसरे अजदहे के मैदे में चला जाए तो उसे दोबारा कबूल नहीं करता। यहाँ तक कि जब मैंने उससे कहा कि मैं उसके मैदे में मर जाना पसंद करूँगा, तब वो हकारत से बोला, नहीं, तू वहीं जाके मर जा, छोटे अजदहे के मैदे में। जी, यूं तफसीलात के इब्तदाई नुक्ते पर सरहद तकसीम करने वाले 2 पत्थर नस्ब थे। एक पत्थर पर चक्र और दूसरे पत्थर पर चांद तारा, आजाद गुलामों की अजमतों के निशान। उनके दरमियान मुसन्निफ का जिस्म महज एक सवाल बन गया था कि उसका बाकी रहना अहम है या नहीं। बहुत दूर से जवाब मिला, नहीं। मुसन्निफ ने अपने इर्द गिर्द देखा, मगर लफ्ज नहीं में जवाब देने वाले का चेहरा कहीं नजर न आया। दूर दूर तक रेत के टीले थे या मुसन्निफ का जिस्म, जिस पर रेगिस्तानी दिन की मार इस हद तक पड़ चुकी थी कि उसके जहन में भूखे प्यासे भटकते हुए बदनसीब मुसाफिरों के वाकयात गूंजने लगे, जिनके लिए मौत फराईपान बनी। फिर भी वो रेत के ऊंचे नीचे टीलों पर मीलों भागता चला गया। एक जगह वो ये देखकर ठिठक गया कि कई दिनों के मरे हुए 2 इंसानी जिस्मों के रेत में चिकट लोथड़ों को 4-5 रेगिस्तानी लोमड़ियां भभोड़ रही थीं। मुसन्निफ को देखते ही वो भाग खड़ी हुई और वो दहशत ज़दा होकर उन लोथड़ों को देखता रहा। एक लोथड़ा बड़ा था और एक उससे बहुत छोटा। मुमकिन है बड़ा बाप का लोथड़ा हो और छोटा बेटे का लोथड़ा हो, या बड़ा छोटे का बड़ा भाई हो और दोनों को कुछ ही दिन पहले रेगिस्तान में धकेला गया हो।
मुसन्निफ को अपना अंजाम भी नजर आने लगा। इस मज़ा का खेस बेचारगी से मरने की अहमियत ही क्या थी, जबकि ऐसे मरने वालों को तारीख के नुमाइंदा आदर्शों में कोई जगह नहीं मिलती। मुसन्निफ ने बड़े कर्ब के साथ सोचा कि क्या उसे भी बहुतों के लिए मिसाल बनना है। अगर जिस्म की बका मुमकिन नहीं तो रूह की बका की तो कोई सूरत हो। उसने अपनी यादाश्त में ढूंढा कि शायद कोई ऐसा नुक्ता मिल जाए जो तारीख के काम का हो, मगर बहुत ध्यान देने के बाद भी उसे मायूसी हुई। इस मायूसी में उसने अपनी प्यास से तड़कती जबान को होठों पर फेर कर तर करने की कोशिश की, मगर जबान का निस्फ हिस्सा किसी चुभने वाली चीज से जकड़ा हुआ था। अलबत्ता नोक की तरफ के हिस्से में कुछ बोलने की सकत रह गई थी। मुसन्निफ ने कुछ बोलने की बजाय एक बार जिस्म की बका की कोशिश की। उसने उकड़ू बैठकर अपने बाएं हाथ के चुल्लू में पेशाब किया तो बमुश्किल निस्फ चुल्लू पेशाब निकल सका, जिसे उससे अपनी जान बचाने की आस में हलक में उडेल लिया। तब उसे याद आया कि मरने से जरा देर पहले शैतान पेशाब पिलाने की कोशिश करता है। यूं शैतान अपने याद करने वाले के पास मौजूद तो था ही, और जिस तरह वो रवायत में बोलता होगा उसी तरह बोला, मेरा एहसान मान कि मैंने तेरी सूखी जबान तर की। लानत हो, लानत हो। मुसन्निफ ने एतकाद के ज़ोम में शैतान को कोसा तो शैतान हंसा। बेवकूफ़ मुसन्निफ, तेरी ज़बान जिस नमी को हमेशा से चूसने की आदी रही है वही तुझे आखिरी घड़ी में भी फराहम की गई, और तू चाहता क्या है? मुसन्निफ से कोई जवाब न बन पड़ा। बात तो ठीक ही थी। उसे वो औरतें याद आ गईं जो उस पर फरेफ्ता थीं। उनकी टांगों में ज़रूरत से ज़्यादा तकलीफ हुआ करती थी, मगर उनमें से किसी औरत ने उसके लिए अपनी उंगली भी नहीं काटी थी। मुसन्निफ को अब जिस्म की बका से मायूसी हुई और उसकी ज़बान को अपनी नापाकी पाक करने की चाहत हुई। कहीं से एतकाद ने आवाज़ दी, करबला के शहीदों को याद कर। मुसन्निफ ने करबला के शहीदों को याद किया और मजीद चलने की बजाय रुक गया। तफसीलात के आखिरी नुक्ते पर एक ईंट रखी हुई थी जो दरअसल रेगिस्तान की रेत पर कहीं से आ पड़ी होगी। इस ईंट पर मुसन्निफ ने अपना सर रख लिया। तब हवा की गूंज दूर से सुनाई दी। ये एक अलार्म था जिसे मुसन्निफ ने फौरन ही जान लिया। दरअसल बड़े अजदहे के मेदे ने तवील इब्तला के बाद उसे रेगिस्तान के उस मुकाम पर उगल दिया जहां मुखालिफ समत से छोटे अजदहे की फुंकार सुनाई दे रही थी। मुसन्निफ ये याद करके कांप गया कि 7 बरस पहले वो छोटे अजदहे की आंतों को अपने कलम से काट काट कर बाहर निकला था। वो कलम से पहुंचे हुए जख्मों को भूला तो नहीं होगा, बदला तो जरूर लेगा। यूं भी छोटे अजदहे का मैदा बड़े अजदहे के मुकाबले में ज्यादा तंगो तारीक, बेसब्र और उजलत पसंद ठहरा। मुसन्निफ दिल ही दिल में छोटे अजदहे के खौफ से डूब रहा था। ये अजीब बात है कि उस घड़ी कहानी मुसन्निफ के सिरहाने मौजूद थी और कुत्ता भी। मुसन्निफ की समझ में नहीं आया कि कहानी कब उसके सिरहाने आ पहुंची, और कुत्ता जिसके गले के गिर्द धंसी हुई कुत्ता मक्खियां मोती की हैयत तब्दील करके पिचकी हुई मकोई की तरह मालूम हो रही थी। वह भौंक नहीं रहा था, अलबत्ता उसकी जबान लटक गई थी। मुसन्निफ के लिए अब यह अंदाजा लगाना नामुमकिन था कि वो मर रहा था या कुत्ता, और रेगिस्तान में जैसी शाम हुआ करती है वैसी ही शाम थी। ऐसे में मुसन्निफ ने सिर्फ अपने चेहरे के ढलते तासुर से कहानी पर खुद को जाहिर किया। कहानी बड़े दुख से बोली, काश तुम परिंदा होते, किसी भी समत आजादी से उड़ते फिरते, तुम्हें किसी पासपोर्ट या वीजा की जरूरत न होती। अब क्या हो सकता है? मुसन्निफ के लहजे में बड़ा गहरा जख्म था। कहानी ने भी गंभीरता से कहा, कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि मेरे वजूद का बाब अपने इख्तिताम को पहुंचा। फिर भी तुम्हें सुकून की जरूरत है। सुकून? सुकून कैसे मिल सकता है? यादों से, कहानी ने फैसला किया। तुम्हें कुछ याद है? हाँ, मुझे वो दावतें याद हैं जब मैं खाना खाते हुए खुद को इस हालत में पाता जैसे मैं कब्र में पड़ा हूं और मुर्दाखोर चींटियां और कीड़े मुझे खा रहे हैं। मुसन्निफ बोला, मेरे सवाल का ये जवाब तो नहीं। अफसोस कि मैं इस घड़ी यही जवाब दे सकता हूं। क्यों?
تمہیں امید نہیں کہ تم یہاں سے کسی طرح بچ کر اپنی قوم کی ترقیوں تک پہنچ سکو؟ میں کچھ نہیں جانتا، میرے اوپر تو آسمان پر ایسے ستارے چمک رہے ہیں جو مجھے راستہ نہیں بتا سکتے۔ راستہ تو ایک ہی ہے کہ تم چھوٹے اژدہے سے درخواست کرو کہ وہ تمہیں قبول کر لے۔ میں اب کسی اژدہے سے کوئی درخواست نہیں کروں گا۔ پھر تمہارا حشر کیا ہوگا؟ جو ہو رہا ہے، میں تو یہ دیکھ رہی ہوں کہ تم برزخ میں ہو۔ برزخ تو جنت اور دوزخ کے درمیان ہوتا ہے، ہاں، مگر ایک برزخ کا اضافہ تمہاری ترقیوں کی دنیا میں ہوا ہے، 2 احمقوں کی سیاست کا برزخ۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم ان دونوں احمقوں میں سے کسی ایک احمق کو جنت مان لو۔ میں یہ نہیں کر سکتا، میں کسی احمق سے مانوس نہیں ہونا چاہتا۔ اس طرح تو تم ایک غیر مانوس سچ کے لیے موت کو قبول کر رہے ہو۔ ہاں، پھر میں تمہارے لیے کیا کروں؟ اگر تم کچھ کر سکتی ہو تو بس میری ایک خواہش پوری کر دو۔ کیا؟ تھوڑی دیر کے لیے میری خاطر تم حضرت ابو ذر غفاری کی بیٹی بن جاؤ۔ بہت اچھا، مگر کیوں؟ اس لیے کہ میں جس مقام پر مرنے والا ہوں وہ مقام ربضہ سے مختلف نہیں۔ ایک ڈر ہے کہ تم پر درندے نہ ٹوٹ پڑیں۔ مجھے یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ مومنین کی ایک جماعت میرے پاس آ جائے گی، حالانکہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں۔ نظر تو کرو، تمہیں کوئی دکھائی دیتا ہے؟ کہانی نے چونک کے ایک طرف دیکھا اور حیران ہو کے بولی، ہاں، میں ایک جماعت کو آتے دیکھتی ہوں، سفید کاغذ کی پوشاک پہنے ہوئے کچھ لوگ، یہاں تک کہ ان کے ہاتھوں میں قلم بھی سفید ہیں، ان کے چہرے نورانی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمہاری تدفین سفید کاغذ کی قبر میں کریں گے۔ میرے چہرے کو قبلے کی طرف پھیر دو۔ مصنف کی یہ آخری خواہش تھی جسے کہانی نے پورا کیا۔ اس کے بعد مصنف کو مارنے کے لیے جو موت اتری، اس نے پہلے اس کے پاؤں کو، پھر ٹانگوں کو، پھر ناف کو، پھر پیٹ کو، پھر پسلوئیوں کو، اس میں قلب شامل نہیں ہے، پھر گردن کو، پھر ٹھوڑی کو، پھر چہرے کو، پھر سر کو، مگر نہیں، اس گھڑی بھی کہانی باخبر تھی۔ اس نے مصنف کے مرتے ہوئے جسم سے صرف اس کی آنکھیں اٹھا لیں، صرف اس کی آنکھیں اٹھا لیں۔ ایسا کرتے ہوئے اس نے خدا کو گواہ بنایا، اے خدا، میں مصنف کی صرف آنکھیں لے جا رہی ہوں